The center needs to control the main arteries, the main national system, but the state needs to control its area. So if Chhattisgarh, in my view, wants a more nuanced lockdown, and a Uttar Pradesh wants a total lockdown, that choice, in my view, should have been given to the chief ministers. But it's fine. It's not been given. We are past that now. It's no point. There's no point going over it again. Now we've gone into a full lockdown. We are now opening up partially on the 20th. I'm advocating a strategic opening because I fear that if you open and you do not have testing, you will be forced to go into a lockdown again, because you will see the disease profile will pick up. So that is why I'm advocating for a strategic lockdown where the state governments are aggressively testing and checking what is going on dynamically. राहुल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि पिछला जो राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री जी का, उसमें उन्होंने कहा कि इस महामारी को किसी दूसरे देश से तुलना तो नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन फिर भी भारत अन्य देशों की अपेक्षा सही स्थिति में है, ठीक स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो पर्याप्त है और वो संतुष्ट होने लायक है आपको? देखिए, इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, मुझे फ्रैंकली बाकी देशों के ऊपर वारी नहीं है। मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं, और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे 40% रोजगार देते हैं देश में, उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े हैं, तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। ये तो अगर देखिए, ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है, इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा। My question is with regard to the problems faced by the farmers in the country. We have seen the farmers struggling to sell their crop, that is one. And second, the losses which they are making because of the COVID pandemic. So far, we have not heard any step from the government, union government, to mitigate for the losses in terms of the MSP which they announce before every season. What are your suggestions to the government in this regard? I mean, my suggestions is to think about a safety net for critical areas of our economy. Food is going to be a major problem. It's going to be a huge problem. We have our godams full, and after our crop, we are going to have an overflow. Let us start giving that food out to the poor people. Farmers require protection. Prepare a package and deliver the package. You see, unfortunately, the nature of the crisis is such that everybody is impacted by it. You can talk about farmers, you can talk about small and medium business, you can even talk about big business. So it has to be an Indian response. It has to be a response that is compassionate to everybody. But one must keep in mind that do not use all your ammunition right now. Because if you use all your ammunition right now, and we end up 2-3 months from now with a serious financial blowback, we have a real serious problem there. So it has to be a thought through strategic way of doing it. My advice is give out as much money to the poorest, weakest people as you can, but keep in mind that there is going to be a financial backlash. The water is going to come back.
राहुल जी, लगातार आप टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आपने कहा टेस्टिंग 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 और टेस्टिंग होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट लगातार उनका शेड्यूल 3 से 4 बारी डिले हुआ है और आखिरकार चाइना से कंसाइनमेंट आज पहुंचने वाला है, जो कि एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था इस लड़ाई में। उधर चीन से जो सामान आ रहा है, चाहे प्रोटेक्शन गियर्स भी हो, वो बहुत खराब क्वालिटी के आए हैं और रिजेक्ट भी किए गए सरकार द्वारा। मेरा सवाल सीधा है कि आपको लगता है फेलियर कहाँ है, चीन की भूमिका में है या सरकार की भूमिका में? और दूसरा, लगातार गैर भाजपा शासित राज्य ये आरोप लगा रहे हैं कि टेस्टिंग किट को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या बाकी राज्य हो, और उनको कम मिल रहे हैं टेस्टिंग किट। तो इस पे मुझे जवाब चाहिए था। देखिए, एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहां हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहां है, क्यों यहां है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। और टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई स्ट्रेटेजिकली सोचकर। टेस्टिंग इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस। इट इज a strategic weapon. It has to be used like a strategic weapon. Currently, as I said, we are chasing the virus. किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। सर, गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था। क्या था? गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था कि उनका आरोप है कि भेदभाव हो रहा है टेस्टिंग किट के मामले में, पीपीई के मामले में। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में किट नहीं आ रहे हैं। मैं वो कमेंट कर रहे हैं, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या आई है, सैकड़ों किलोमीटर चल के वो घर तक पहुंचे हैं, बहुत सारे पहुंच गए हैं, लेकिन लाखों की तादाद में अब भी कई जगहों पे बंद हैं लॉकडाउन में। राज्य सरकार या केंद्र सरकार लाख कोशिश कर रही है उन तक मदद पहुंचाने की, लेकिन उस मात्रा में मदद पहुंच नहीं रही है। तो क्या आपका सुझाव होगा कि उन लोगों को किसी एक तरीके से एक मेडिकल मेथड अपना के स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने इलाकों तक पहुंचने दिया जाए, तब जाकर वहां पे जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाए, चाहे उनको वहां क्वारंटीन रखा जाए? तो इस तरह की आप सुझाव देंगे? क्योंकि देखने में आता है कहीं कहीं हजार तादाद में मजदूर अचानक से निकल आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम की धज्जियां उड़ जाती है। तो क्या आपका ऐसा कोई सुझाव है कि सरकार उनको घर तक पहुंचने दे, कोई भी एक तरीका अपना के, बिल्कुल तरीके के साथ? देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसका जवाब आपको दे सकेंगे। इसमें भी 2-3 अलग व्यूज हैं। मैंने लोगों से बात की है, 2-3 अलग व्यूज हैं, बट सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ के ये रिजॉल्व करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। Supriya Bhardwaj from TV9. I can see you, Supriya ji. Will you unmute and ask your question? राहुल जी, नमस्कार। मेरा सवाल आपसे है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो लोग काफी रो रहे हैं। जो उनकी समस्या मुख्य है वो यही है कि खाना नहीं मिल रहा है।
आपने भी बार बार कहा कि ग्रेनरीज को ओपन किया जाए और कहीं ना कहीं जो ग्रेनरीज हैं उनको खोल के लोगों को खाना दिया जाए। तो एक बार क्या सरकार को आप फिर से कहेंगे इसी चीज के ऊपर कि लोगों को खाना जो है इमरजेंसी राशन कार्ड के जरिए दिया जाए, और आखिर कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है जो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको देखते हुए? फूड सप्लाई क्रिटिकल चीज है और एकदम मतलब आज नहीं, ये तो 10 दिन पहले कर देना चाहिए था कि जो हमारे गोडाउन में खाना है वो एकदम अनाज है एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है असेस करने के लिए। बट मुझे लगता है कि 10 केजी व्हीट और राइस, 1 किलो पल्सेस, 1 किलो चीनी हर सप्ताह सरकार को देना चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं, मिनिमम, मतलब एकदम, क्योंकि हमारे गोदाम्स में ओवर सप्लाई है और वो फसल के बाद और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो एकदम कर देना चाहिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी ट्वीट किया 2-1 दिन पहले और कहा कि वन साइज फिट ऑल जो लॉकडाउन का तरीका है वो ठीक नहीं रहा और उससे काफी लोगों को दिक्कतें हुई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी से कमी कहाँ रह गई, कौन सी बड़ी गलती वो कर गए? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि उनको नहीं लगता कि इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि दूसरे देशों को देखें तो उसके लिहाज से हमने बड़े अच्छे प्रिएम्प्टिव कदम उठाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई सरकार से? देखिए, ये मैं आपको जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा। मगर आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं। मैं तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना? कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी बताया। सेफ्टी नेट, जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि आप और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और जो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो लगातार सुझाव दे रहे हैं पीएम को। पीएम ने भी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की है, तमाम पार्टियों ने उनको सुझाव दिए हैं, लेकिन जो विपक्ष है उनके सुझाव को नहीं माना जा रहा है। ये इससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो सरकार को ऐसा लगता हो कि कहीं कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिल जाए, इसकी वजह से वो आप लोगों को सुझाव नहीं बन रही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे बस जो हमारी जनता है, जो हमारा देश है, उससे उसकी प्रोटेक्शन करनी है। मुझे कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले, मगर हमारा काम आज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है। सरकार ले ना ले,
हम अपना काम करते रहेंगे. Post corona crisis, do you fear the nature, even the structure of Indian democracy could change? That's a real possibility. That's a real possibility. But we have to first take care of the virus. We can take care of, we know how to make sure that India is democratic. Don't worry about that. But right now we have to make sure that we defeat this virus.